ओवरऑल अगर तू एक स्टोरी को एक जिस्ट में बोलेगा तो इट लुक्स वेरी सिली कि ये क्या है, एक फैमिली डिस्प्यूट के चक्कर में एक भतीजा अपने चाचा को पेल रहा है और जो चाचा का बेटा है वो आके वो अपने कजन से लड़ रहा है. दिस इज द ओवरऑल जिस्ट ऑफ इट. सो दिस गोज टू शो दैट एक सिंपल वन लाइनर को किस तरीके से तुम एक स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करके एक्सट्रापोलेट कर सकते हो and make it engaging. That's the thing. Vanga has brought so many of his personal tastes and personal like idiosyncrasies into this plot that it becomes rich. And then you have वो layer के ऊपर you have रणवीर जो वो उसको अलग ही लेवल पे ले जाता है with his performance. गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा. केसरिया तेरा इश्क है मेरा. This guy is making us fall in love with the film even more. Okay, welcome to to Desi Deep Dive and welcome to all the new viewers we got after Sucharita Tyagi's roast. There is a correlation between Animal and Sucharita's roast. How she found fame. How she found mainstream fame. Mainstream fame, yeah. एंड कोइंसिडेंटली अपने संदीप वांगा साहब भी आ रहे हैं कल इंटरव्यू देके. आई डोंट नो बाय द टाइम हम जब रिलीज करेंगे तब तक शायद इंटरव्यू आ चुका होगा. संदीप, if you are watching, please tell me if my interpretation of the film is correct. Okay, because there is a lot to just for me to say. अभी तक हमारे व्यूअर्स को पता नहीं है. जिन्होंने भी जिगरा का देखा है पॉडकास्ट उनको समझ में आएगा ये आदमी कितना बहता है. कभी कभी बहुत रेयर है इसका भी बहना. और it is actually very rare as well of both of us disagreeing with each other. वो भी बहुत rare है. Which is what will happen for this. मुझे वही लग रहा था. मुझे पहले से ही I am anticipating that पहले से ही कि इस बारी में काफी disagreements होंगे हम दोनों के बीच में. जिगरा में तो मैं पहले ही बोल दिया था कि भाई बहुत होंगी और हुई थी. Which let's do you want me to open with my overall thoughts here? Because I'll just sort of immediately subvert expectations because my history with this film is very complicated. शुरू कर भाई, शुरू कर. तो ही शुरू कर. Okay, I went to watch this film when it came out theaters में. I went with my wife and I distinctly remember just trying to figure out what the film was trying to tell me. People know this by the Tyagi Girls review. I am a liberal. Okay. Now, the people I follow online are also liberals. So they led me into believing कि ये इस तरह की फिल्म है जो एक लिबरल इंटरप्रिटेशन है. उसके बाद मैं जब वापस फिल्म देखा जब नेटफ्लिक्स पे आई, दैट इज हाउ आई सॉ द फिल्म. नाउ इन प्रिपरेशन फॉर दिस डिस्कशन जब मैंने वो फिल्म वापस देखी, आई एक्चुअली थिंक दिस फिल्म इज अ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी. ओके, इट्स रणविजय's कैरेक्टर गोइंग फ्रॉम मैस्कुलिन टू जस्ट कॉन्स्टेंटली फॉलिंग आउट ऑफ इट. Throughout the discussion, I will sort of try to support my argument because I kept noticing things ki this is what an alpha male should do, which is what he's doing when the film starts, and he slowly starts to lose all of it. Dhire starts to break everything. First time I saw the film, I did not like it theater mein. Second time through my liberal interpretation, I did not like it even more. Like और खराब लगी वो film. ठीक है. Last night when I sat down slowly just understanding the film, I liked it slightly more. And today, on my fourth rewatch, I actually have started liking the film because of my own interpretation of the film. इतनी मेहनत पढ़ाई वढ़ाई में लगा ली होती बचपन में तूने, बोर्ड क्रैक कर लेता, IIT वगैरह कर लेता. एनिमल को 4 बार ही देखा तूने. बाप रे बाप यार. मैं this thing happened with Jigra. Okay, Jigra maybe the guy who is at the helm understands cinema. Okay, उसको क्राफ्ट समझ में आता है, which is why I actually try to think उस लेवल पे. सेम थिंग विद SRV. उसको भी क्राफ्ट समझ में आता है. एंड अपनी जितने भी डिस्कशंस किए ना, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको क्राफ्ट समझ में आता है. ठीक है, जिन्होंने फिल्में बनाई हैं. सो यार वी हैव टू गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि हाँ मे बी यू वर ट्राइंग टू से दिस. नहीं तो मैं नहीं करता ट्राई इतना. हाँ, जैसे कि अब ये जवानी है दीवानी जब हमने देखी थी, सो उसमें भी व्हेन आई वेंट इनटू द फिल्म मैं पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसमें क्राफ्ट रिलेटेड डायरेक्शन या जिस तरीके से शॉर्ट कॉम्पोजिशन हुआ है या कुछ बताया है विजुअल स्टोरी टेलिंग वो सब होगा. मैंने सोचा नहीं था. बट आई वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड अ फ्यू मोमेंट्स उसमें थे. जैसे कि हमने बात भी किया अपने पॉडकास्ट में, वो कुछ मोमेंट्स थे जो वो जैसे वो बनी का इंट्रोडक्शन सीन होता है अपने पेरेंट्स के साथ और वो एप्पल उठा के जाता है, रिजेक्टिंग द शरबत केप्ट बाय हिज स्टेप मदर.
तो वैसी वैसी जो चीजें हैं वो सब उसमें उस मूवी में मुझे नजर आई थी, तो मैंने रियलाइज किया कि ओके देयर इज समथिंग इन दिस। बट इस मूवी में मैं पहले से एक्सपेक्ट करके जा रहा था कि विजुअल स्टोरी टेलिंग होगी, क्योंकि इस बंदे को वो आता है। या तो और इसमें मुझे काफी चीजें पहले से ही मिल रही थी, पहले पहले सीन से, पहले शॉट से, सब कुछ उसमें है। काफी शॉट्स हैं ऐसे जिसमें उसने स्टेजिंग इस तरीके से किया है, डेलिबरेट स्टेजिंग है, स्पेस से लेके जिस तरीके से काफी सीन्स का जो सेटिंग है वो सिग्निफाई करता है। द म्यूजिक इज आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द डाइजेटिक सॉन्ग्स। डाइजेटिक सॉन्ग्स का मतलब ये होता है कि जो गाने कैरेक्टर खुद सुन सकते हैं उस सीन के अंदर। जैसे कि इस मूवी में जो एग्जाम्पल इज दैट अर्जन वैली सॉन्ग, यस, वैसी टाइप की जो चीजें थी ना वो बहुत डिलिबरेटली किया है संदीप ने। तो वो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई इस बंदे को पता है, इस बंदे को ये सब चीजें आता है। द ओनली प्रॉब्लम इज जहां से वो ड्रॉ कर रहा है ना सारे आइडियाज, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक जोन है। अब वो उसका पर्सनल वेल जो है, वेयर ही इज ड्रॉइंग द स्टोरीज फ्रॉम, मे बी दैट इज डैमेज्ड, because only a damaged person can write something like this. It is a tragedy. This story is a tragedy. yes, And it's very much a family tragedy. And I also drew a lot of parallels between this family and if you've seen Succession. yes, The character of Anil Kapoor, बलबीर सिंह होता है ना उसका नाम, हिम एंड द कैरेक्टर जो सक्सेशन में जो ब्रायन कॉक्स प्ले करता है, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, आई डोंट नो इंटेंशनल था अनइंटेंशनल था, वांगा ने सक्सेशन देख के इसको किया या नहीं किया मुझे पता नहीं, बट कैरेक्टर्स एंड द डायनामिक्स विच आई सॉ वर वेरी सिमिलर। बट ऑफ कोर्स सक्सेशन इज प्राइमरीली ए ड्रामा, तो इसलिए उसमें वो कैरेक्टर्स और ज्यादा फ्लैश आउट किए गए हैं एंड देयर इज मोर टाइम एज वेल, सो वी कैन नॉट कंपेयर द also it's not specifically about one character. हाँ, तो इसमें भी ऐसा नहीं है। I feel like this is a lot more about Ranvijay. Yes, the spotlight is on him. The spotlight is on him. And जिस हिसाब से you were saying कि this is a deconstruction of masculinity, I agree to an extent. मैंने तेरे से हाफ टाइम में भी कॉल करके बात किया था कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि एक हमको कुछ मिसिंग लग रहा था कि the character which we see, the young child of Ranvijay, from there to immediately the scene where we see that दिस वो स्कूल वाला एपिसोड जो सिस्टर को वो गन लेके वो जाके वो दिखाता है, सो देर इज अ ड्रास्टिक जंप बिटवीन द टू, बिकॉज वो जो चाइल्ड होता है उसमें वो क्या है कि एक अटैचमेंट होता है टुवर्ड्स हिज डैड, दैट इज द ओनली थिंग विच वी कैन सी इन द फर्स्ट सीन। हम उसमें उसको देखते नहीं है कि ही इज अ ब्रैट या टॉक्सिक या जिस तरीके का वो बाद में बन जाता है। वरना अगर वो टीचर उसको बोल रही है हाथ दिखा के मार, अगर वो एडल्ट रणबीर होता वो तो दोबारा टीचर को ही पेल देता। बट एज अ थिंग, सो वो एक छोटा न्यूआंस है, बहुत छोटा है. Okay, it's him respecting the teacher's decision to just not respecting the teacher's decisions in that teacher's decision in the gun wala scene where he tries to protect his sister. वो आता है and he is not even considerate of like कि teacher खड़ी है, एक मिनट मैं आ रहा हूँ. Okay, that shift. As opposed to पहले सीन में वो पहले उसको टीचर बोलती है हाथ दिखाओ, वो मार भी रही है, और फिर उसके बाद वो वहां पे जाके उसको बोलती है कि हेड वो स्टैंड अप, वो नील डाउन करके हाथ खड़े करके नील डाउन भी बोलती है, वो भी कर देता है वो जब तक घंटी नहीं बजती. And when I was watching that scene, I sort of like the fear of teachers that boys have. Okay. Yes. And this one thing, because I've seen it, I've been a teacher, and I've seen women openly slap students and Yes. hit students. Okay. Yes. I'm like, okay, this fear or this hatred develops very early. वहीं से स्टार्ट हो जाता है. आप स्कूल से ही अगर बच्चे को मारना शुरू कर दो ना, आपकी टीचर मारना शुरू कर दे, तुम्हारा हेटरेड बहुत जल्दी डेवलप होता है. और वो वहां पे वांगा ने एकदम मस्त दिखाया. वो पता है क्या होता है कि हाँ, तो तभी मैं कह रहा हूँ कि देर आर सीड्स विच आर सोन दैट he turned the way he did because maybe of the society and all of this around him. Yeah. वो भी एक तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई वो बच्चा he is actually क्या बहुत ही ओबीडियंट होता है, वो आंसर दे रहा होता है ना उसका ओपनिंग शॉट में. टॉपर है क्लास का वो यार, क्लास का टॉपर है, वो खुद बोलता भी है एंड ही इज प्राउड ऑफ इट एज वेल कि वो टॉपर है. तो वो एक ऐसे टॉपर बच्चे को इस तरीके से मोल्ड कर दिया, ही बिकेम सो टॉक्सिक. यस. तो तभी हमको बड़ा अजीब लग रहा था कि यार इसका कोई सोर्स नहीं है ऑफ ऑल ऑफ दिस टॉक्सिसिटी एंड व्हाई ही बिकेम दिस अल्फा मेल एंड यू नो ऑल दैट कि मैं माचो हूँ, मैं प्रोटेक्टर हूँ, वो वाला जो पूरा वो जैसे वो क्या है, वो जैसे सुचारिता बोलती है मचीज़मो. दिस इज व्हाई मेरे को है ना वांगा का जो
स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा बहुत और लगता है मुझे, कि वो जिस तरह से स्ट्रक्चर करता है अपने सीन्स को, कि ये यहाँ पे डाल दिया, ये यहाँ पे डाल दिया, इट फील्स लाइक कि यू आर डूइंग इट फॉर द प्लॉट टू वर्क समटाइम्स. So Yes. that scene where he has a flash, where he sort of narrates a flashback कि मैं कॉलेज में था, बोर्डिंग स्कूल में, where वो पेशेंस वाला थिंग, आई अंडरस्टैंड वाई ही टॉक्स अबाउट द पेशेंस वाला थिंग दैट कम्स इन टू प्ले लेटर, बट वो पहले दिखाते ना, Yes, it would have made sense. इट वुड हैव मेड सेंस. Yes, क्योंकि वो पेशेंस वाला एस्पेक्ट इट फील्स लाइक वो उस पॉइंट में वो रिक्वायरमेंट है, इसलिए दे आर ब्रिंगिंग दैट अप उस टाइम पे. इट फेल्ट लाइक दे वर वांगा वाज मेकिंग अप द कैरेक्टर एज द थिंग्स वर प्रोग्रेसिंग. दैट इज व्हाट आई फेल्ट. So the patience thing sort of comes later into play twice. हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, पेशेंस वाली जो बात वो कर रहा है उससे पहले तक तो वो पेशेंस वाली बात आती ही नहीं है, कोई रेलेवेंस ही आती नहीं है है. उसका. तो बट वो उस पॉइंट में उसको पेशेंस दिखाना है बिकॉज ही वांट्स अ डोनर. Yeah. उसका हम पहले से थोड़ा सा हिंट्स देख लेते तो अच्छा लगता. अब जैसे कि मैंने बोला था कि बार बार आई एम कमिंग बैक टू दैट कि आई फील दैट द जंप बिटवीन हिज चाइल्ड टू द एडोलेसेंट स्टेज, जिस जब वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है गन लेके, उसके बीच का जो गैप है, हमने फर्स्ट हाफ में उसको फेल होते नहीं देखा कि वाई ही बिकेम दिस वे. उसका लास्ट में जाके एक्सप्लेनेशन देते हैं. दैट वन पर्टिकुलर सीन वेयर रणबीर कैरेक्टर इज द फाइनल कॉन्वर्जेशन ही इज हैविंग विद हिज डैड, जिसमें वो बोलता है ना, आप पापा बनो, आप बेटा बनो, मैं पापा बनता हूँ. तो व्हेन ही इज एनैक्टिंग दैट सीन, दैट इज वेयर वी गेट द हिंट कि हाँ, जिस तरीके से उसने बिहेव किया बलबीर ने उसके साथ व्हेन ही वाज 5 years old, दैट इज व्हाट मेड हिम दिस वे. बट इट अपीयर्स राइट एट द एंड. इट इज फाइन, क्योंकि मूवी के खत्म होते हुए उसी में ही इज द मोस्ट वल्नरेबल, वेयर ही इज ट्राइंग टू इन्फॉर्म बलबीर कि भाई मैं इस तरीके से बनाऊं तो उसका रीजन भी तू ही है. वो सीन एक्चुअली शूट कर देते, जो उन लोगों ने बाद में इनैक्ट किया ना रोल प्लेइंग के टाइम, वो सीन अगर शूट कर देते ना तो वो इमोशनल कोर जो है ना फिल्म का वो बहुत स्ट्रांग होता. थोड़ा जैसे जिगरा में द वेरी फर्स्ट ओपनिंग सीन इज ऑफ द किड्स वॉकिंग थ्रू द स्टेयरकेस and the girl seeing the father jump down from the balcony, whereas immediately she's sheltering the young boy. उसी में उसका जो कैरेक्टर होता है आलिया भट्ट का, समझ में आ गया पूरी मूवी में कि ये क्या है. Yeah. So that never happens here. It's same thing, right? With Taken, you want to establish a father-daughter relationship. You open not with an action scene because film तो action है. You open with father is trying to buy a present. उसने money save up किया है. Right? That is what you're showing. In Animal, the opening scene also on paper has to serve the same, और वो जिस तरीके से उन लोगों ने सेटअप भी किया वो भी वैसे ही था कि they want to show that this child is obsessed with his father, और वो दिखा रहे हैं, and the father is not giving him the time of the day, and in fact the father is not giving any of his children the time of the day. वो उसकी मम्मी आके सीधा उसको बोलती भी है टेबल पे कि बच्चे कितनी मेहनत से केक लेके आए थे, आपने स्कूल से भी उनको जल्दी बुला लिया, तब भी आपने अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया, 10 मिनट नहीं दे सकते अपने बेटे को टाइम. और फिर अनिल कपूर का कैरेक्टर जाता है वो सोते हुए बेटे को देखने, एंड ही फाइंड्स दैट लेटर जिसमें वो पूरा लिखा हुआ है कि वही जो एंड में वो बोलता भी है बेसिकली दोबारा. इट कम्स इनटू प्ले, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ चेकऑफ्स गन. एंड वी ऑल्सो सी दैट द फादर ऑब्जर्व्स द मार्क ऑन हिज सन्स हैंड, जो टीचर ने रूलर से मारा होता है उसके हाथ में. सो उस सीन में देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो बाप है अनिल कपूर का कैरेक्टर का जो है बलबीर सिंह, ही इज नॉट दैट बैड. He maybe is trying to build this business and he doesn't have the time, which is why he's neglecting the kid, but he's regretting that. वहां पे I'm not seeing the toxic side of बलबीर सिंह, which बाद में दिख रहा है. बाद में तो जब भी वो आ रहा है रणबीर को मारे जा रहा है, चाटा ही मार रहा है. मैंने कहा बस कर भाई. वो जो तो वही है ना, जैसे कि ओपनिंग सीन में उन लोगों ने जो सेटअप किया था, that was not enough to sell the entire movie. You needed another scene. To show the toxicity. I feel कि वो scene is a good starting point जो उन्होंने दिखाया, that establishes what the young Ranvijay was feeling and his relationship dynamic. वो समझ में आ गया. I think they needed another scene थोड़ा सा आगे जाके immediately कि अब जो रणबीर है थोड़ा सा बड़ा हो गया है. He's still not रणबीर, he's still an adolescent, but इसमें तुम दिखा रहे हो कि बलबीर सिंह कितना टॉक्सिक है. वो भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, और इसका जो फ्रस्ट्रेशन और वो सब है वो अपने ही इज अनलीशिंग इट ऑन द किड्स. अगर वो सीन दिखाते ना उसमें वो फिर वो सेल हो जाता दोनों का. क्योंकि वाई आई एम
डिमांडिंग दिस सीन इज बिकॉज वांगा ये कर रहा है पूरी मूवी में. ही इज केयरफुली प्लांटिंग द सीड्स विच उसका पे ऑफ बाद में मिल जा रहा है हमको हर चीज का. तो मैं वही सोच रहा हूँ कि तू ये कैसे छोड़ दिया. अगर ये कोई और होता तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, बट बिकॉज इस मूवी में इस बंदे ने किया है ये इतना कॉन्शियसली हर चीज उसने प्लांट किया है, तो ये जब उसने मिस किया तो मेरे को वही लग रहा था कि हाउ कैन यू डू दैट. आई मीन आइदर यू फेल्ट इट इज नॉट नेसेसरी, यू वांटेड टू डेलिबरेटली लीव इट एम्बिगुअस, या तो पता नहीं, मतलब आई कांट गेस इट. I feel like he thought that he had done enough setup. अरे मतलब तेरे को नूडल्स सर्व करना है, नूडल्स सर्व करने के लिए चाइनीज हाका नूडल्स सर्व करने के लिए कैबेजेस काट दिए तूने, शेजवान सॉस सब मिला लिया, सब कुछ फ्राई करके तड़का वड़का लगा दिया, तू मेन नूडल्स ही डालना भूल गया. एंड यही प्रॉब्लम सालार में भी थी. सालार का जो ओपनिंग सीन था कि जो तेरा देवा है वो दिमाग से खेलता है, बट फिर जैसे कट टू व्हेन वी सी अडल्ट प्रभास, वो तो बस ब्रॉन है, वो तो बस लड़ाई कर रहा है. Yeah, we don't see the development. Yes, so that is the same thing which happens here as well. But structurally, I will say that the first half of this movie, I liked the first half much better than the second half. That seems to be the consensus. And I understand why, because second half में pacing issues मुझे बहुत लगे. क्योंकि अभी मैं फर्स्ट हाफ का बताता हूँ why I like the first half. जिस तरीके से वो मैं बोल रहा था ना टाइम जंप्स हो रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगा मुझे. इवन दो द वन सीन आई वॉज मिसिंग आउट, उसके जगह उन लोगों ने दे इमीडिएटली स्किप एंड रिवील तेरा रणबीर का कैरेक्टर वो बाइक में पूरा वो माइकल जैक्सन का पूरा वो फंक वंक हेयर बना के, एंड ही इज जस्ट यू नो राइडिंग द बाइक विद द बैकग्राउंड म्यूजिक फ्लेयरिंग, एंड देन ही इज कमिंग टू विजिट दिस पर्टिकुलर शादी ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड सिस्टर, एंड वही वहां पे उसको प्यार हो गया. तो वो तो पता नहीं क्या ही सीन था वो यार. वो सॉन्ग जो बजता है ना, दिल है छोटा सा, इट्स आल्सो रणविजय's कैरेक्टर. उसकी छोटी सी आशा है ब्रो. सिर्फ पापा वैलिडेशन चाहिए उसको. हाँ, दैट इज ट्रू. देयर इज, आई मीन, यू कैन फाइंड सम मीनिंग इन दैट, बट तू ये सोचेगा तो ओके, लाइक ठीक है, लेट्स जस्ट टॉक, कंपेयर करते हैं, साइमल्टेनियसली कंपेयर करते हैं विद बॉबी देओल्स कैरेक्टर एज वेल, अबरार. बोथ अबरार एंड रणविजय आर द सेम. यस. एंड ये लिटरली मूवी में भी बताया जाता है. No, but what I feel is that Abrar's introduction in the film. So apparently they had shot the backstory of Abrar. They had shot the scene of the grandfather setting himself on fire and Abrar's reaction to it. They shot that, but he removed it. अच्छा edit किया. में से. Okay. I don't know. वो फ्लैश आउट हो जाता है आई थिंक अबरार का कैरेक्टर, बट अबरार जब इंट्रोड्यूस होता है ना फिल्म में, दैट इज व्हेन रणविजय इज ऑन दैट फॉल. ही इज ऑलमोस्ट नीचे ही है वो, बट अबरार ब्रिंग्स दैट मैस्कुलिनिटी बैक. अरे तो वो ट्रांजिशन देखना कि वी आर सीइंग हिम, ऐसे पूरा क्लोजअप है रणविजय के कैरेक्टर का, एंड देयर इज अ वाइब गोइंग ऑन फ्रॉम बिलो टू हियर, जिसमें हम रणविजय को एकदम ब्रोकन देख रहे हैं, एंड देन यू आर लिटरली सीइंग, आई मीन ही हैज लॉस्ट क्या रणविजय का उस सीन में, उसका टेस्ट गया, उसके सेंसेस गए, वो ब्रोकन है पूरी तरह से, एंड इमीडिएटली हियर यू आर सीइंग अ मैन हु सेलिब्रेटिंग, स्मोक कर रहा है, दारू पी रहा है और वो केक खा रहा है, एंड ही इज इंडल्जिंग. सो एंड वेरी मच इन अ ट्रिम्ड एंड मस्ट, बेसिकली he's Abrar's character is in the same spot where Ranbir's character was when he got introduced in the beginning. जैसे कि वो बाइक चला के आ रहा है. Very, and which is why I brought it up, because वो भी एक शादी में ही इंट्रोड्यूस हो रहा है. Both the characters are getting introduced using a wedding, and there is a music played behind. Yeah. उसमें वो अरेबिक सॉन्ग प्ले हो रहा है जो बहुत वायरल हो गया था, एंड इसमें वो बॉम्बे का जो वो पूरा प्लेलिस्ट है उसका एक मैशअप प्ले हो रहा है. और रोजा, बॉम्बे एंड रोजा, या रोजा, आई थिंक वो रोजा ही है, बॉम्बे नहीं है शायद, रोजा है. और 2 गाने का मैशअप है. तो वो दोनों, तो इट इज वेरी सिमिलर हाउ बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, एंड दोनों का कोर सेम ही है. वो दोनों अपने बाप के लिए किसी एक्सटेंट तक भी जा सकते हैं. दोनों के दोनों डिसेबल भी हो गए थे. उसका वो बहरा हो गया. That is why when Ranbir sees Abrar for the first time when they interact, Ranbir is on the downfall, and I feel like, okay, I'll talk about this later when I'm explaining मेरा interpretation. But second half Ranbir does a lot of things that first half Ranbir would not even think about doing. यही Abrar उसको first half में मिला होता ना, वो उसको spare करने के लिए सोचता भी नहीं.
Okay, there is a moment where he tries to spare Abrar, who's like कि भाई तू मेरा भाई है, दादा ने बोला है कि छोड़ दे. I don't think first half Ranveer would have done that. नहीं, फर्स्ट हाफ वुड हैव डन दैट. ही वुड हैव डन इट. ही वुड डेफिनेटली डन इट. मैं बताता हूँ क्यों. दिस इज द थिंग. दिस इज व्हाई वी नीड अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली दिस कैरेक्टर इज, जो इसमें उन लोगों ने नहीं दिया. जो रणविजय का कैरेक्टर है, ही हैज अ वेरी स्क्यूड टेक ऑन ऑल रिलेशनशिप्स, On love itself. एवरीथिंग. Yeah. बेसिकली उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है कि ये आइडेंटिफिकेशन मेरे को हुआ है कि बिकॉज ही डिड नॉट गेट द वैलिडेशन एंड गेट द लव ऑफ हिज फादर. वो बाकी हर जगह उसने ढूंढा है उसको, एंड उसने वो चीजें सीखी है. आई मीन हाउ अ फादर इज सपोज टू बी, हाउ अ सन इज सपोज टू बिहेव, एंड हाउ अ मदर इज सपोज टू बिहेव, हाउ अ सिस्टर इज सपोज टू बिहेव, हाउ all the other family members they are supposed to behave, what it means to be a grandson, what it means to be a brother, what it means to be a sala, a jija. All of these things he started learning and he started थिंकिंग कि यही होना चाहिए. दिस इज हाउ, बिकॉज उसको वो घर में वो उसने क्या है कि उसने वो पर्सनली फील नहीं किया अपने घर में, विच इज वाई ही स्टार्टेड learning about all of that from another source rather than experiencing it. He just started learning from it, which is why in the first half जब वो जाता है कि उसके बाप पे अटैक हो गया, तो वो जा रहा है अपने कजन्स से मांगने हेल्प. सो फॉर हिम ही इज लाइक कि फैमिली ही है जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज फॉर हिम दैट इज द डेफिनेशन ही लर्नड. I understand what you're trying to say. I'm saying none of these people जो वो भाई बोल रहा है उनको, जो उसके cousins है, none of them have actually attempted assassination on his father. Okay, उसका father का love is at the peak उस टाइम पे. हाँ, नहीं वो तो डेफिनेटली है, बट वो क्या है कि he would have still asked, he would have still spared him, he would have still tried to reason with him. वो उसको बोलता कि तू मेरा भाई है, तू मेरा खून है, तू छोड़ दे मेरे पापा को. I mean, he has that skewed kind of, क्या बोलूँ मैं, soft corner, unreasonable soft corner when it comes to family. उसको अगर पता चल गया ना कि ये इसकी फैमिली है, तो उनको वो कंसिडरेशन देगा. वो मारेगा, डेफिनेटली मारेगा, बट वो कंसिडरेशन देगा. तो वो वही चीज़ है. दैट इज वाई इन द क्लाइमैक्स व्हेन वो अबरार का इंट्रोडक्शन भी होता है, लुक एट द वे रणविजय's कैरेक्टर लुक्स एट अबरार. ही हैज दिस रिग्रेट एंड एक वो एक ग्लीम है उसके एक्सप्रेशन में, उसके चेहरे पे ना एक वैसा टाइप का एक्सप्रेशन है कि ये मेरा भाई है. और मैं तभी तो मैंने बोला वो महाभारत वाला जो मोमेंट होता है, दैट इज वेयर ही गेट्स दैट मोमेंट, दैट अर्जुन वाला मोमेंट. मैं तो यही बोल रहा था कि बिकॉज ही इज एट दैट पॉइंट इन हिज लाइफ उस टाइम पे व्हेन ही सीज अबरार, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. वो तू ऐसे बोल रहा है, बट मेरे हिसाब से अगर ये स्टार्टिंग में भी उसको पता चलता ना, ही वुड हैव रिएक्टेड द सेम वे. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्टिक विद दैट. ठीक है, यू कैन डिसएग्री, बट दैट इज व्हाट दैट इज द काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन आई हैव, बिकॉज वही मैंने कैरेक्टर को समझा. तो बट अब मैं यही बोल रहा हूँ कि ये क्लियर करने के लिए ना वो सीन चाहिए था, और वही चीज मिसिंग है इस मूवी में. दैट आई एग्री विद. हाँ, the thing, something interesting that you said, that he never got the love, which is why he has a very skewed idea of what relationships are and what the role of a person is in a family. ठीक है, he also understood that love you can manipulate somebody into loving you. Okay, again वो scene दिखाया नहीं है, but the way he makes Geetanjali fall in love with him is very manipulative. Right? He was rejected, पापा से रिजेक्ट हो गया, मम्मी तो वो ट्राई भी नहीं किया. मम्मी तो क्या मम्मी है भाई उसकी, क्या मम्मी है, वो डम्मी है, वो मम्मी नहीं है, डम्मी है. So हाँ, that reject became this person. That constant reject became this person because college made some point he figured out this ideology. वो सीन चाहिए था again. एंड जैसे वो बोलता भी है ना कि घर पे भी उसको रिजेक्शन मिला, और स्कूल पे भी वो कह रहा था ना कि सीनियर्स उसको पकड़ के पेल रहे थे, तो उसमें भी तेरे को समझ में आना चाहिए कि ही हैज बीन कॉन्स्टेंटली पुश्ड टू दैट लूनेसी, दैट पॉइंट ऑफ लूनेसी वेयर ही हैज टू बी दिस. एंड इट इज अ क्रेजी कॉम्बिनेशन, लूनेसी प्लस अ ब्रिलियंट माइंड. It is a crazy combination. That is Ranvijay. Ranvijay is Kira from Death Note, if you've seen. ठीक है, तुमने एक बहुत खतरनाक लेवल, बहुत एक्सट्रीम आइडियोलॉजी दे दी है ऐसे इंसान को जो बहुत जीनियस बंदा है,
वो स्टार्टिंग से स्टैब्लिश है, वो इस टॉपर क्लास में है। वो जब छोटा बच्चा है वो क्लोनिंग और ये सब की बातें कर रहा है, बॉडी डबल की। कौन सा छोटा बच्चा बात करता है ये सब की? यस ओके सो यस, और उसको दिखाते भी तो हैं, ही इज ब्रिलियंट। द ओपनिंग सीन वेयर वी सी द चाइल्ड, ही इज गिविंग द डेफिनेशन ऑफ एन एनिमल इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर। और उसके बाद उसका बैग दिखाते हैं, देयर इज अ स्पेसमैन एंड नासा वासा का वो स्टिकर विकर लगा हुआ है, तो उसमें समझ में आ जाता है। in that scene there is a poster behind him. We see the poster before we see his hand. No, I'm not talking about that. I'm not talking about the butt. अच्छा, you're not talking about that. I'm not talking about the butt. Okay. उस पे नीचे कोट लिखा होता है, द कोट इज टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. Okay, again my interpretation, I think Vanga hates this bullshit self help stuff. Okay, so the नीचे the जिसने लिखा है ना वो कोट, you only see CH. बाकी हाइड हुआ है. हो सकता है, बिकॉज आई थिंक वांगा करता है सब. वांगा पीछे बहुत ध्यान देता है बैकग्राउंड में क्या जा रहा है. फॉर दोज हु आर वंडरिंग क्या किसकी बात कर रहे हैं, वो इमीडिएटली वो स्टार्टिंग का जो मूवी शुरू होती है जिसमें वी कट टू 1996 स्कूल में, जब वो बता रहा होता है कि क्या है व्हाट इज एन एनिमल, तो उसमें हम शॉट दिखाते हैं कि एक हाथ ऐसे आ रहा है इसका, रणविजय का, बच्चे रणविजय का हाथ ऊपर आ रहा है, ही इज रेजिंग हिज हैंड टू बेसिकली गिव द आंसर. तो उस हाथ को आने से पहले द शॉट इज इन फोकस, बैकग्राउंड पे फोकस हो रहा है वो, और इमीडिएटली उसका हाथ जैसे आता है वो फोकस शिफ्ट होता है. तो जस्ट पॉज करके देखना, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिटेल्स इन द ब्लैक बोर्ड पीछे. हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज टी सीरीज की मूवी है, तो इसलिए वी कैन नॉट यूज शो यू द इमेज, बट जाके नेटफ्लिक्स में आप देख लो. इवन देयर इज अ स्मॉल हिंट ऑन like Michael Jackson as an artist was very nuanced. Okay, he had a lot of different shades. वो तो लास्ट शेड बाद में पता चला अपने को, बट उसके पहले भी देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स लाइक ऑल आई वांट टू से इज दैट दे डोंट रियली केयर. वो एक गाना था, देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड हील द वर्ल्ड. ओके, सो यू कैन सी दैट साइड ऑफ हिम, बट द सॉन्ग दैट ही कनेक्टेड विद वाज बैड. बैड का पोस्टर लगाया है उसने, ठीक है, इवन एज अ किड. तो मैं वही बता रहा हूँ ना, ही बेसिकली कनेक्टेड विथ हिम बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, ही गॉट निग्लेक्ट, एंड वही है, उसका सोर्स वही है कि उसको रिलेशनशिप, एक स्टेबल फैमिली नहीं मिली जिसमें उसको ये सारे इमोशंस फील करने को मिली, विच इज़ वाई ही स्टार्टेड. आई मीन इमेजिन करके देख, वी हैव ऑलरेडी गिवन द एविडेंस दैट वो काफ़ी पढ़ाकू है, काफ़ी दिमाग वाला है, एंड इट इज सेट इन, ये जो जब वो बच्चा होता है 1996 में सेट है. बैड केम आउट इन 87. हाँ ठीक है, बट 96 में थोड़ा इंडिया में तो लेट से आता था. हाँ, बट वो कंसिस्टेंसी देख यार. एट द एंड ही मेंशंस दैट देयर वाज अ माइकल जैक्सन कॉन्सर्ट. ठीक है, शुरू में यू सी द पोस्टर एंड पार्टी में ही वॉक्स विद अ मून वॉक. यस, सो कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छा है. वांगा यार वो तो है, बट मैं हाँ, जैसे कि मैं वो कह रहा था कि 1996 में सेट है ये, तो इसलिए अब अ चाइल्ड हु इज नॉट गेटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, उसको क्या है कि उसको सीखना है. तो अभी आजकल तो लोग गूगल करेंगे, उस टाइम पे बुक्स जाके पढ़ा होगा, लाइब्रेरी जाके देखा होगा कुछ ना कुछ, और वो इतना बड़े बाप की औलाद है तो उसको तो सारे रिसोर्सेज मिल जाते होंगे, तो वो वहाँ से काफ़ी पढ़ के, दैट इज़ वाई आई फील कि इसने सीखा होगा सारा, ये बुक्स पढ़ के ही सीखा होगा कि ऐसे दिस इज हाउ अ रिलेशनशिप इज सपोज टू बी, दिस इज हाउ अ सन इज सपोज टू बिहेव, दिस इज हाउ अ फादर इज सपोज टू, यू नो, I mean, I think he wouldn't read up on a father, how a father is supposed to behave, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो उसका बाप सबसे बेस्ट है. yes, तो वो बाकी सारे रिलेशनशिप्स के बारे में उसने that is where the pelvis thing came from. He also read the history books on how a man is supposed to behave. यहीं से बार बार कोट करते रहता है ना वो, उसका वो वहीं से वो पर्सनैलिटी बिल्ड हो गई थी. So he was kind of, that is where he developed this entire ideology from where, I mean, this character, I'm not talking about Vanga, maybe Vanga ने भी ऐसे किया होगा पता नहीं, but यहाँ पे इस character of Ranvijay, this is how I'm seeing कि ये इस तरीके से radicalize कैसे हुआ, इस तरीके से किसे अपने, इसने ये एक पूरा वो अपना character का एक compass, moral compass और everything, how he built on it, ऐसे ही थ्रू मैं इसको judge कर पा रहा हूँ. ठीक है, हो सकता है नहीं है, बट वो बेस्ड ऑन व्हाट आई सॉ, दैट नहीं, यही है, दिस इज गुड, दिस इज द इंटरप्रिटेशन प्रॉपर.
क्योंकि वो जो कोट्स भी बोल रहा होता है ना, जैसे कि वो गीतांजलि के एंगेजमेंट में जाके वो उसको वही उसका वो चला जाता है और वो ऊपर छत पे खड़ी होती है, वो एकदम बैठा होता है, उसके पैर पे ऐसे हाथ रख रहा होता है एंड ही इज ट्राइंग टू सेड्यूस हर। उसमें वो सीधा लाइन बोलता है ना, जो वो बहुत ही स्टूपिड इंटरेक्शन है वो, जिसमें वो इसे दिखाते हैं कि रश्मिका तो इतनी डम्ब है उस कैरेक्टर, गीतांजलि इज सच अ डम्ब कैरेक्टर इनिशियली। I made two footnotes over there. इसमें one was that how did this girl get into Princeton? Okay. यस यस And the second one was the most intelligent character in this movie is Geetanjali's Mausi. वेरी हाँ, वो तो पहले ही समझ गई कि ये कैसा है, इसको भाई बना दिया पहले से ही। Exactly. वो मौसी का फोरसाइट खतरनाक है. ये वही तो बोल रही होती है, कल तक तो भैया भैया बुलाती थी इसको। अरे वांगा ने अपने खुद के फ्रस्ट्रेशंस निकाले हैं वहाँ पे, बिकॉज होती है ऐसी मासी, घर में होती है ऐसी। सेकंड में भी जब वो बीमार होता है ना, जब सॉरी उसको वो गोलियां लगी होती है, ही सेज कि अरे जैसे ही कोई किसी को प्रॉब्लम होती है पूरे घर के लोग डॉक्टर बन जाते हैं। उसके पर्सनल फ्रस्ट्रेशंस भी बाहर आ रहे हैं अंदर ऐसे करके। हाँ, तो अब वो सीन में मेरे को वही बताना था, जिस तरीके से वो एक लाइन बोलता है कि काफी जमानों पहले ऐसा था कि सिर्फ जो अल्फा मेल्स होते थे वही सब उन्हीं सब की बीवियां होती थी, पर क्या होता था कि जो तेरे बाकी सब होते थे, वो बीटा मेल यूज नहीं किया उसने वर्ड, उसकी जगह उसने वर्ड यूज किया था बाकी सब। तो वो बाकी सब जितने भी लोग हैं उनकी भी तो इच्छाएं होती हैं, उनको भी तो होता है, तभी उन लोगों ने सोचा हम compete नहीं कर सकते फिजिकली, तो लेट्स स्टार्ट विथ पोएट्री। तो ही स्टार्टेड, वो जो लाइन है ना, आई हैव रेड दैट एग्जैक्ट लाइन इन मेनी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, और वो इंस्टाग्राम के किसी इसमें आई हैव रेड दैट, वो फेसबुक में पुराने ज़मानों में आता था ना, उस टाइप के मैंने कोट्स देखे हैं। तो मैंने कहा ये भाई ये क्लियर, उसने इसी के लिए मैं बोल रहा था कि ही हैज़ बेसिकली रेड अप ऑन दीज थिंग्स, इसने सब कुछ पढ़ा है और वहीं से उसने सब कुछ अपना डेवलप किया है। दैट इज पार्ट ऑफ माई इंटरप्रिटेशन, वेयर व्हेन ही सेज कि अरे मैं ये ले आऊँगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, एंड व्हेन ही इज एट द एंड ऑफ इट, ओके, द लिरिक्स आर सब कुछ ही मिटा देंगे सारी दुनिया, ओके, वो उस एक्सट्रीम पे आ जाता है, वो पोएट्री पे वो नहीं गा रहा है, बट अगेन फॉर मी दैट वाज द इंडिकेशन। हाँ, सो नाउ बेसिकली जैसे कि मैं वही, ये पूरा डिस्कशन ऐसे था कि अबरार एंड रणविजय आर द सेम। यस, तभी मैं बोल रहा था कि वो जब पहली बारी उसको देखता है अबरार को, ही इज हैविंग दैट मोमेंट की दैट अर्जुन वाला मोमेंट, दैट ये मेरा भाई है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग टू हिम। वो तभी अपने बाकी के कजन्स को भी बोलता है कि कोई गोली नहीं चलाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ही अंडरस्टैंड्स वॉट अबरार इज गोइंग थ्रू, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ही फील्स अ किनशिप टुवर्ड्स हिम, कि अपने बाप के लिए जो ये कर रहा है वही वो अपने बाप के लिए कर रहा है, विच इज़ वाई ही रिस्पेक्ट्स हिम, विच इज़ वाई बोलता है कि ठीक है यही मुझे मारेगा अगर मारेगा तो, और मैं उसको हाथ से मारूंगा। तो दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, एंड आई थिंक अबरार ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दिस, विच इज़ वाई जब इसके भी लोग आ जाते हैं वो उनको रोक देता है कि नहीं मारनी, गोली नहीं मारनी। वो एक और भाई जो उसको पीछे छोड़ के आते हैं ना, कि वो अबरार की बीवी डिलीवरी देने के लिए वो पीछे छोड़ के आया होता है, तो तभी वो बोलता है कि अबरार की बीवी को ट्विन्स हुए हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स, एंड कट टू वी सी दीज टू। या So this is the Ayan Mukherjee kind of thing, show and tell, but here it works. yeah, it works. It's not tell too much. It's subtle tell. And that entire scene is so beautiful because not one line is spoken between the two. Physically एक दूसरे का वो अंदर का फीलिंग निकाल रहे हैं, and that is where I feel Ranbir's परफॉर्मेंस इन दैट सीन इज अमेजिंग, बिकॉज वो सब कुछ कन्वे कर रहा है, उसके अंदर का पूरा जो इमोशन है ना वो कन्वे कर रहा है वो फिजिकली, एंड बॉबी देओल इज ऑल्सो कन्वेइंग द सेम। इफ यू हैव अ गुड डायरेक्टर देन यू कैन डू ऑल ऑफ दिस। या अबे बॉबी देओल को ट्रोल करते थे इस मूवी से पहले, लॉर्ड बॉबी बुलाते थे उसको, नहीं, डीजे वो तो बॉबी अभी भी देओल बुलाते बुलाते हैं। थे। पहले डीजे बॉबी बुला के ट्रोल करते थे कि गुप्त करके, और वही ना ऊंचाइयां गहराइयां, वो ट्रोल करते रहते थे। नाउ ही इज बिकम, आफ्टर दिस ही इज द लाइक हिज लाइफ कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्री एनिमल एंड पोस्ट एनिमल। यस, अभी तो भाई वो एनिमल के बाद तो हर दूसरे तेलुगु मूवी में है वो एज अ विलन। do you know the story of why Vanga cast him? No. Okay, so Vanga saw he was doing Celebrity Cricket League or something. He was playing a match. Okay, so there is a shot of him drinking water after like something, and he's looking at the camera. He has an intense expression. Vanga saw that, and Vanga is like, मुझे ये चाहिए.
दिस इज हाउ इट यूज टू हैपन बैक इन द डे व्हेन सिनेमा में ऐसा होता था कि ये मेरे को ये कुछ अच्छा लगे, जैसे कि टेक जैकी श्रॉफ फॉर एग्जांपल, वह वैसे ही हुआ था, सुभाष घाई कास्टेड जैकी श्रॉफ फॉर हीरो यूजिंग दैट कि इस लड़के में कुछ है, चलो लेके आओ, एंड देन यू, बिकॉज जैकी श्रॉफ का एक अलग एटीट्यूड है। पोलियो का एड देखना कितना मस्त है वो उसका BTS देखो और उसका असली एड देखो, you will see the contrast. That is what an actor does. Speaking of what an actor does, let's talk about Ranbir. I thought you were segueing into speaking what an actor does. Let's talk about Rashmika. मेरे को लगा नहीं अभी नहीं जिस क्लाइमैक्स सीन में जिस तरीके से उसका पोर्ट्रेयल था वो काफी कन्वे करके निकल रहा था कि what that character is going through and what I mean वो जर्नी हमने पूरा देखा है, एंड उस मोमेंट पे he actually doesn't want to do it. वो जो सीन होता है ना जिसमें स्वास्तिक स्टील्स में वो जाके वो स्पीच देता है, बोलता है कि मैं अपने वादा करता हूँ मैं अपने हाथ से काटूंगा करके, बट ही हैज अराइव्ड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि उसके हाथ में चाकू मिलेगा तो वो काट डालेगा, बट हियर ही एक्चुअली डजंट वांट टू डू इट। ओवरऑल अगर तू एक स्टोरी को एक जिस्ट में बोलेगा तो इट लुक्स वेरी सिली कि ये क्या है, एक फैमिली डिस्प्यूट के चक्कर में एक भतीजा अपने चाचा को पेल रहा है और जो चाचा का बेटा है वो आके वो अपने कजन से लड़ रहा है। दिस इज द ओवरऑल जिस्ट ऑफ इट। सो दिस गोज टू शो दैट एक सिंपल वन लाइनर को किस तरीके से तुम एक स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करके एक्सट्रापोलेट कर सकते हो एंड मेक इट एंगेजिंग। That's the thing. Vanga has brought so many of his personal tastes and personal like idiosyncrasies into this plot that it becomes rich. And then you have वो layer के ऊपर you have Ranbir जो वो उसको अलग ही लेवल पे ले जाता है with his performance. There is a scene that I feel like it's the most intense scene Ranbir has done. Remember when I was talking about It's All in the Eyes? फाफा का बात की थी कि वो फाफा कितना eyes use करता है, विकी कौशल का देखा था। यहाँ पे when he comes back from the US, it's an amazing shot. It's not like the gate opens and he's like this, leaning into the frame. दाढ़ी मूंछ है उसको बड़ी बड़ी, लंबे बाल है, but the innocence. And then this whistle comes. If you watch that scene again, notice जब तक उसका बाप ब्लिंक नहीं करता है ना, रणबीर ब्लिंक नहीं करता है इन दैट फ्रेम। वो आ रहा है नॉट वंस डज ही ब्लिंक। माइकल केन ने एक बार बोला था, ब्लिंकिंग सॉर्ट ऑफ ऑन स्क्रीन मेक्स योर कैरेक्टर लुक्स वीक। दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड टू नोटिस। आई फील लाइक अगर रणबीर उस फ्रेम में ब्लिंक करता ना, वो चला जाता, वो फील चला जाता। सो रणबीर इन दैट फ्रेम देयर इज इनोसेंस, ही इज ट्राइंग टू मेंटेन कंट्रोल। उसके बाप के सामने बहुत मुश्किल है, एंड ही इज शोइंग इट नॉट थ्रू नॉट ब्लिंकिंग एट ऑल। देन यू सी व्हाट हैपेंस, उसका पापा कॉम्प्लीमेंट करता है उसको। Okay, you're talking about that second re-entry ना, when he is comes back after the attack. Yes, after the attack. हाँ, उस सीन का एक और ऑब्जर्वेशन भी है मेरा। बेसिकली इट इज अ कॉन्ट्रास्ट टू हाउ ही इंट्रोड्यूसेस गीतांजलि टू बलबीर सिंह एज वेल। ओके, कि पहली बारी जब वो उसको रिवील करता है ना कि पापा दिस इज गीतांजलि एंड वी आर गोइंग टू गेट मैरिड करके, और उस टाइम पे वो भी जो गीतांजलि भी है नमस्ते अंकल बोलती है ऐसे, और उस टाइम पे कोई रिप्लाई नहीं आता। बलबीर इज जस्ट स्टेयरिंग एट हिम मतलब बहुत ही गंदे से एक्सप्रेशन के साथ, और जैसे ही उसका दामाद आता है वो बोलता पापा चलो पापा केक काटने का वक्त आ गया पापा करके, ये चला जाता है इमीडिएटली उठ के विदाउट एनी कंसिडरेशन टू दीज टू। कट टू हियर व्हेन ही रिटर्न्स आफ्टर द अटैक, सेम उसमें क्या है कि बस प्लेसेस शिफ्ट हो जाती हैं। कैसे शिफ्ट होता है, पहले ये लेफ्ट में खड़ा होता है रणबीर एंड राइट में तेरी रश्मिका खड़ी होती है, एंड इधर नाउ दे हैव स्वॉप्ड प्लेसेस, एंड इधर फिर से रश्मिका नमस्ते अंकल बोलती है, इमीडिएटली बलबीर इज लाइक नमस्ते बेटा। या गोज टू शो दैट एक्सेप्ट कर लिया मैंने फाइनली तेरे को। Yes. Also, it's the first time he gives that compliment. He's not asking something of Ranbir in that moment, because he's always asking something of Ranbir constantly. And वो रणबीर को पहली बारी जब वो देखता है ना, he is so happy that मेरा बेटा आ गया। That is the second moment where we see the love which this character has for his son. First is the opening scene जब वो लेटर ले लेता है, and second is this scene. We see that हाँ ये अपने बेटे को इतना प्यार करता है, and then वे उसको बिठाता फिर बोलता है कि कब आए, तो ये बोलता है ना मैं सुबह आया, तो बोला किसने वेट कराया तुझे बता। So Yeah. that shows कि okay he has actually accepted his son, and this is where I feel the movie could have taken a very different direction कि हाँ भाई अभी ये बाप बेटे दोनों एक हो गए हैं। So वो same scene में something I noticed. Oh, the mother, what she does, right? She walks towards Ranbir, just a hand on the chest, just a reassuring hand on the chest, and immediately running towards the grandson.
Okay, not even the granddaughter. I think it's the grandson that she goes to. Right? It very typical mother And reaction. it's not even a very typical. I mean, throughout the movie as well, even Ranbir pays more attention to the son, his own son, than the daughter. Yeah. जब वो वाला सीन होता है ना, जब वो रश्मिका के साथ वो पूरा उसने इंटरेक्शन कर लिया होता है और वो गोली चलाता है, तो he immediately runs to pacify his son, whereas Rashmika is pacifying the daughter. और in the end भी when Rashmika is leaving him, गीतांजलि is leaving him, and then गाड़ी रुकती है, इसका बेटा ही भाग के आके इसको गले मिल रहा है. Okay, one more detail. Same scene where there is a gunshot. Okay, you can see both of the children are first pehले तो sleeping. ठीक है, and only the son wakes up from the gunshot. Okay, it shows that उसकी बेटी वो इतनी खुश है ना लाइफ में कि वो इतनी साउंड स्लीप सीरियस होती है ना कि शी डजंट इवन वेक अप. इतना गनशॉट से पर कोई भी उड़ जाएगा. ठीक है, बट द डॉटर इज स्लीपिंग सो साउंडली, शी इज लाइक आराम से, एंड बच्चा तुरंत उड़ जाता है, लड़का तुरंत उड़ जाता है. But this movie is constantly about a father and son, Yes, father but then and son. these small details also exist, is Vanga is putting, Yes. which makes it जैसे really interesting. another interaction, another particular father son moment is तेरा वो जब उसका जीजा होता है, जीजा को वो खत्म कर देता है, and the sister is so hyper ventilating, she is like कि नहीं मिल रहा, फोन नहीं उठा रहा 6 घंटे से. her son comes and tries to give her reassurance कि अरे पापा को कुछ नहीं होगा. तो रणबीर जो रणविजय है उसको देखता है, बोलता है कि देख क्या कॉन्फिडेंस है तेरे बेटे में. अगेन गोज टू शो दैट रिलेशनशिप डायनामिक बिटवीन फादर एंड सन. एंड ये बोलता भी है कि तेरी जीन्स ज्यादा स्ट्रांग है, अच्छा है तेरे बेटे तेरे बच्चे तेरे पे गए हैं. तो इधर भी इसका वही आ गया कि इसको ऐसा है कि इसका खून है तो ये कुछ भी करेगा. Yes. He doesn't take, I mean, yeah, because he had never accepted the Jija as his family. Of course, yeah. एंड जब वो फोटो सेशन भी हो रही होती है स्टार्टिंग में, तब वो स्टार्टिंग में उसको बोलता भी है, ओ तू रुक जा, पहले मैं आप और दादाजी एक साथ खिंचाते करके पहले वो उसको साइडलाइन करता है. फिर बाद में जब पूरी फैमिली एक साथ फोटो खींच रही होती है, रणबीर इज स्टैंडिंग अ लिटिल अवे. ये सब सटल चीजें इसने की, मतलब दीज आर बेसिक थिंग्स. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दिस इज वेरी रेवोल्यूशनरी, बट ये चीजें भी मैटर करती हैं. दिस इज हाउ यू बिल्ड अ डायनामिक रिलेशनशिप, डायनामिक एंड कैरेक्टर. You mentioned that scene where he unalives his brother-in-law. This is why I have a big problem with non-linear storytelling, because he has chosen to have this sort of structure here. I feel like setting up that his brother-in-law has attempted the assassination on the father, वो पहले सेटअप करते ना, तो it would have been a bigger moment. इट वर्क्स फॉर मी बिकॉज क्या है ना, तो इमोशन अगर तू देखेगा तो इमोशनल कंटिन्यूटी इज दैट वो लीनियर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर से क्या सेटअप होता है कि हम खाली रणविजय के कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, और उसने उससे पहले वाले सीन में बोला होता है कि एक दिन मैं तेरे को और तेरे भाई को खत्म कर दूंगा. एंड इमीडिएटली वी कट टू, वी आर सीइंग रणबीर इज गोइंग एंड देन बेसिकली खत्म कर रहा है वो. एंड उसका जो प्रीकर्सर है वो भी ऐसे दिखाते हैं कि वी आर अज्यूमिंग व्हाई ही बेसिकली बम्पिंग ऑफ दिस ब्रदर इन लॉ, बिकॉज वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है एंड इसको ये पसंद नहीं है. दैट इज व्हाट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इससे पहले, उस सीन से पहले. सो वो इमोशनल कंटिन्यूटी में हम इमीडिएटली वही सोचते हैं कि अच्छा इसकी वजह से जाके उसने मारा है. फिर दे कट बैक टू शो दिस एंटायर कंस्पिरेसी कि हाँ ये जो ब्रदर इन लॉ था ये इन्वॉल्व था इसके. So Vanga was asked as to why he chose to have that scene first. ठीक है, because that scene comes immediately after a small time leap. And it's a very abrupt transition also, by the way. That इससे पहले हम ऐसे दिखाते हैं कि वो फ्लाइट ऊपर जा रहा है, there is a terrain which is about to hit, और वो ऊपर जा रहा है. उसमें हम देखते हैं कि रश्मिका का कैरेक्टर गीतांजलि भी ऐसे पकड़ के बैठी, शी इज ब्रेस्ड फॉर इम्पैक्ट, एंड इमीडिएटली वी सी सडनली कि एक गाड़ी आई एंड देन ही इज इमर्जिंग एज दिस यंग, पूरा वो दाढ़ी वाड़ी उगा के सिगरेट विगरेट मार के फिर वो चल के जा रहा है. सो इट इज अ वेरी बिजार टाइम लीप. यूजुअली एक स्मूथ ट्रांजिशन या कुछ होता है, बट आई डोंट नो व्हाई दे डिड दैट. बट पता नहीं, मैं उसका मीनिंग भी इतना सोच नहीं पाया. Was that he did it for shock value. ठीक है, हल देखा. Yeah, so that also made sense. I think Vanga gets very uncomfortable when you get comfortable with a film. ठीक है, तू अगर थोड़ा सा भी ऐसा होने लगता है ना सीट में, वांगा को नहीं पसंद.
ठीक है, like for example when they finally consummate after the night, okay, not on the plane, not on the jet, bed पे properly, नीचे। ठीक है, after that you are in this comfortable position because they are walking, it's a nice, immediately क्या बोली, don't go there, okay, immediately there is subversion of that कि comfortable मत हो तुम फ्रेम में, ठीक है, ठीक है। तो वो भी ना उन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप डायनामिक सेटअप करता है दैट ही विल डू एनीथिंग फॉर रश्मिका, बट जब बाप पे आ जाती है वो उसको भी कुछ भी करेगा, वो दैट इज द काइंड ऑफ डायनामिक विच दे आर सेटिंग अप, कि ये थोड़ा येड़ा है बाप के मामले में। पापा की परी है, जैसे तूने एक बार ही बोला था, but पापा की परी I है। feel like he doesn't realize that starting में, that realization comes later. Second half is him realizing that. That is why he loses that masculinity part of his. For me, people reveal themselves by the decisions they make in under pressure. उसके पापा ने उसको चाटा मार के बोला निकल जा, but then गीतांजलि comes, इस इंसान के पापा को बोलता हूँ कि मेरे को इससे शादी करनी है। फर्स्ट हाफ में he doesn't even realize that his flaw is his father. वो अपना ही अलग लेके बैठा हुआ है आइडियोलॉजी। सेकेंड हाफ में there's a reconstruction of okay, he slowly realizes and that culminates into he sees that in Abrar. तेरे लिए वो मोमेंट है कि ही सीज दैट एंड रियलाइजेस, मेरे लिए वो मोमेंट है कि दैट इज वाई आई एम गिविंग हिम द रिस्पेक्ट दैट कि कोई इसको गोली नहीं मारेगा, मैं ही अपने हाथ से मारूंगा, बिकॉज मैं रिकग्नाइज कर रहा हूँ ये वही चीज़ है जो मेरे साथ हुआ है, इसकी भी जिंदगी वैसी ही है, ये अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो इसलिए मैं अगर हम यहाँ पे मारेंगे तो एक दूसरे को ही मारेंगे। Because I have not talked to you about my interpretation, मैं बीच बीच में घुसाता जा रहा हूँ and you don't have an idea of what I am saying. मैं थोड़ा justify कर दूँ? बोल। Okay, I'll just draw parallels from first half and second half as to what is it. Okay, my interpretation is that first half में he has this wrong interpretation of what masculinity is because he's self-taught. Okay, second half में he learns what it is and that's when he actually achieves it by the end. कुछ चीज़ें मैंने notice किया, made notes of it. When he gets shot mid point में, उसको डॉक्टर आके बोलती है कि कुछ प्रॉब्लम है हार्ट में, एंड he's like सीधा सीधा बता ना कि मरने वाला हूँ। When he comes back to गीतांजलि वो सीधा सीधा नहीं बोलता है, he minces words. Oh, I slept with her, I have physically involved with her. Okay, he's not that person in the first half. Second half में he becomes that person for me. वो जो मोमेंट है जो तूने ऑब्जर्व किया है वो मेरे लिए ऐसा है कि अगेन दैट कम्स टू प्ले दैट कि वो अपनी फैमिली जिसको मानता है उनके साथ वो बहुत कंसिडरेट रहता है, उनके साथ वो ऐसे मिन्स करेगा, वर्ड्स वगैरह करेगा, बट ही विल नॉट डू इट फॉर अ स्ट्रेंजर। फॉर हिम द डॉक्टर इज अ स्ट्रेंजर, ही डजंट रिस्पेक्ट द डॉक्टर द सेम वे ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ, सो दैट इज वाई ही इज ट्राइंग टू मिन्स वर्ड्स बिकॉज ही इज कंसर्न्ड अबाउट हर फीलिंग्स। Okay, maybe it is my interpretation of things. He is also shown to be a little honorable. अरे वही तो वो सेटअप होता है ना, पहली बार जब वो अपने सारे भाइयों को लेके आता है और भाई सारे अपने वो फीमेल फ्रेंड्स को लेके आके बैठे होते हैं, वो सीधा आके बोलता है कि डूड गाइस व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे थोड़ी होता है, ये नहीं करना होता, तुम्हारी बीवियां हैं घर पे, तुम ऐसे थोड़ी करोगे, तेरी तो सीरियस मैं बता रहा हूँ, वही वो भी है, इट इज पार्ट ऑफ इट। ओके, इट्स पार्ट ऑफ माय पैरेलल्स। फर्स्ट हाफ में he never actually gets physical with his anger on his wife. Second half में he does the brass trap thing that he does, catching off the neck, pulling a gun out on her, he does that बाद में। First half में he never does it. His idea of masculinity is very different first half में। First half में he tells her that I will never cheat on you. वो तो बोलता है मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, वो लिटरली वही किया उसने। So for second half में वो deconstruct हो गया, वो धोखा देता है उसको। First half में again he's shown to be that person that is very masculine and he prides himself on having that body. Second half में actually gains weight. You are trying to contrast these two, but there is still a continuity that first half और second half का उसका कैरेक्टर बदला नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जब when he gains weight he actually notices that and he says अपने बाकी भाइयों को कि भाई कभी पति हो कि ना पेट नहीं निकल के आना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो बोलता है। Yeah, that is him trying to grapple with it, and that is where the pad scene comes. So for me, that anger is a reaction to, oh shit, I'm actually losing that idea of masculinity. Okay, I'm losing my grip on Geetanjali and I need to get it back. So वो reactionary पूरा scene है वो. So that is now I feel like that pad scene makes sense. I don't think Vanga is done out of some facetious things of problem. I don't मतलब वो प्रॉब्लम उसको उस तरीके से अगर तू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंटरप्रेट करेगा तो बहुत चूतियाप लगेगा वो सीन। No, it's the wrong thing to say. It's the wrong, and it is coming from his own insecurity. Yes, वो वही है कि मैस्कुलिन है तो he is using that entire psyche which he has developed to defend his point क्योंकि कि
एक ही लड़की है, कॉन्वर्सेशन चुप में, रह। हाँ, एक ही कॉन्वर्सेशन में कितनी 2-3 पॉइंट्स निकल आते हैं उसके, एंड दैट ओनली हैपेंस व्हेन यू आर रिएक्टिंग टू समथिंग, यू आर ट्राइंग टू सेव इट, राइट? तो पहले पैड वाला आता है, फिर बोलता है अरे आई एम अ मैन, मैन हैव बीन फाइटिंग वॉर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बाद में बोलता है अरे इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, क्या करें, ओके? एक साथ 3-4 पॉइंट निकल आते हैं उसके। एक और पॉइंट भी निकल आता है जब उसके दोनों भाई आके बोलते हैं वीरे क्या कर रहा, सीधा बोलते ओ यू कम टू Yes. सेव द डैमसेल इन डिस्ट्रेस, ऐसे करके, तो फिर वो Yes. भी इसका निकल आया। So first half में he doesn't let all his brothers cousins cheat. Second half में he's like हाँ कर लो, वो खुद ही कर रहा है। उस टाइम पे नहीं बोलता, वो जब इंजर्ड होता है और वो जब ऐसे पूरा बैठा होता है ना, तब बोलता है कि बुला ले जो बुलाना है। मैं बिकॉज ही इज लाइक कि अभी हम थोड़ा पीसफुल हैं, लेट्स जस्ट रिलैक्स करके अभी थोड़ा कर लो, एंजॉय करना है तो कर लो। बट वो चीटिंग वाला जो एस्पेक्ट है ना, बार बार जो आ रहा है, इट इज काइंड ऑफ लाइक अ चेकऑफ्स गन एंड इट इज अ वेरी आयरॉनिक ड्रामेटिक आयरनी कि हाँ हमें पता है कि ये बाद में जाके इसको चीट करना है, बट ये कैरेक्टर स्टार्टिंग में इस तरीके से, तो वो सेटअप वैसे हुआ है। बट ठीक है, उसमें थोड़ा सा इंटरप्रेट कर सकते हैं जिस तरीके से तू कर रहा है। And two more, I have 2 more observations. One is if you rewatch that scene where he's talking, जो US से आता है, where his father gets shot, after his father gets shot, he is still trying to maintain that composure पापा के सामने, and when he sits like this, पापा जो उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, he has no idea how to react, so वो चेस्ट हेयर के बारे में बात करने लग जाता है अचानक से। तो पापा ने कभी कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दिया उसको लाइफ में कभी। एंड में बिफोर दैट रोल प्लेइंग वो पापा को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे साथ यूएस चलो, पापा चलते ना, यूएस चलते ना। ही इज लीनिंग इन वेरी वल्नरेबल, Yes. टेलिंग मी दैट दिस एट दिस पॉइंट वो बहुत वीक जोन में है, वो पूरा ही वल्नरेबल हो गया है। फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस अल्फा मेल जोन, they constantly tell you that as a man you should never look vulnerable, you should not cry. How does the film end? Yeah, Just he's crying. starts to cry. ओके सो ओके, तू ना वही ना, तू एक्चुअली में देखा जाए तो तू उस आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख के एनालाइज कर रहा है, विच इज वेयर आई कैन सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। बट मेरे लिए, मैं कैरेक्टर को, मेरे लिए ऐसा है कि जैसे कि वो वाला सीन तो जो कह रहा था ना कि वो वल्नरेबल है, अपने बाप के सामने ऐसे बोल रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा है कि हिज इनर जो भी उसने जो वॉर विच ही हैड सेट आउट टू फाइट, इट इज ओवर नाउ एंड द विजुअल सिग्निफिकेंस इज ही हैज शेव्ड। तू देखेगा उसके बाल भी लंबे हैं। सो रिमेंबर इन द फर्स्ट सीन इन द ग्रुप फोटो व्हेन ही फर्स्ट कम्स बैक फ्रॉम अमेरिका, वो बाल कटवा लेता है और वो बोलता है ना कि तुम्हारे लंबे बाल में भी अच्छे लगते हो, तो सीधा बोलता है हाँ मैं बढ़ा लूंगा पापा। हाँ, मैं इन सबको इंडिविजुअली नहीं देख रहा हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग एट इज अ पैटर्न इज व्हाट आई एम सेइंग। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन ही इज कंप्लेनिंग अबाउट द अंडरवेयर, रश्मिका उसको अंडरवेयर खोलने के लिए बोलती है एंड ही एक्चुअली इज लाइक अरे सबके सामने थोड़ी, आफ्टर हिज सर्जरी जो देखना है देखो। सो ऑल दीज पैरेलल्स मेड अ पैटर्न फॉर मी कि यार ये एक अलग जर्नी पे, इसका आर्क पूरा रोने तक क्लोज हो रहा है। I feel that Animal Park में he would be a much better father. You would see a complete opposite of the kind of father Balbir was and the kind of father Ranvijay is in this film. For me, I'm saying. नहीं होगा, maybe. मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि जो तूने आर्क बोला है ना, वांगा ने नहीं सोचा है, मैं पक्का बता रहा हूँ नहीं किया। अरे हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा इंटरप्रिटेशन, आई डोंट थिंक वांगा ने सोचा है। जैसे कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट हिज बियर्ड, सो द बियर्ड एंड ऑल दैट सिग्निफाइज एन अल्फा मेल एंड यू नो द पीक मैस्कुलिनिटी, सो विच इज वाई व्हेन ही सेट आउट फॉर वॉर, उसने पूरी दाढ़ी वाड़ी उगा के रखी है, एंड एज सून हैज हिज बैटल इज ओवर, दाढ़ी शेव कर ली, बट उसने बाल नहीं कटवाए बिकॉज उसके बाप ने बोला था कि यू लुक गुड इन लॉन्ग हेयर एज वेल। सो अकॉर्डिंग टू हिम, सिंस यू आर सेइंग कि उस सीन में वो वल्नरेबल है, मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि ही इज नॉट वल्नरेबल, ही फील्स ही इज एट इनर पीस, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा है कि खत्म हो गया है, द वॉर हैज एंडेड एंड नाउ ही कैन फाइनली reconnect with his father and properly live the life which he always wanted to, तो वो comfortable हो गया, he is not vulnerable, okay, he is comfortable. one more thing I sort of missed out. तू बैठने की उसका posture देख, तू जिस तरीके से वो ऐसा बैठा होता है, तू vulnerable बोल रहा है lean in करके, मैं बोल रहा हूँ वो comfortable है। नहीं, comfortable तो नहीं है वो, he's trying to convince his father by actually being himself, in the sense that this is him, this is the vulnerability he can only show in front of his father, but okay, please बट वो तो वल्नरेबल बोल रहा है, मैं वो उसके पोस्चर की बात कर रहा हूँ कि जैसे कि पहली बारी वो हॉस्पिटल बेड में जब उसको अनिल कपूर बुलाता है तो वो आके ऐसे बैठते जिस तरीके से तूने बोला था, बट हियर ही इज सिटिंग सेम उसी पोजीशन पे बैठा है जैसे वो हॉस्पिटल बेड में बैठा था, एंड द फादर इज सिटिंग लाइक दिस, वो फ्रेमिंग भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं।
बट इसमें देखते हैं कि ही इज वेरी कंफर्टेबल ऐसे. तो इसमें दिस गोज टू शो दैट ही फील्स ही हैज नाउ ग्रोन क्लोजर टू द डैड एंड ही फील्स दैट कि अब आई कैन have this kind of conversation with his dad. That is my interpretation. I'm saying first half में he doesn't realize कि इसका flaw is the father. Second half में it is just tearing down layers for him to interpret कि oh shit, this is my problem. Papa is my problem. Okay, first half में doesn't realize that. End में he realizes that कि Papa is my problem. Which is why when he says अरे गीतांजलि को वो बोलता है ना कि अरे तू सोच, अगर तेरे से मेरे बाइसेप्स होते, मेरी चेस्ट होती, ऐसा सब होता तो तू नहीं जाती. विच इज़ वाई इज लाइक ओके, यू कैन डिफेंड हिम फिजिकली बट यू कैन नॉट डिफेंड हिम फ्रॉम अ डिजीज. आई विल मेक यू हेल्पलेस. दैट इज द सुपरमैन कंडरम ना. या सुपरमैन का पूरा आर्क ही वो उस तरीके से. सुपरमैन अल्फा मेल नहीं है ना, उसके पापा बढ़िया थे यार. मैन ऑफ स्टील वाला नहीं, ओरिजिनल सुपरमैन. मैन ऑफ स्टील वाला बाप तो यही वाला बाप था, चूतिया बाप था. Okay, announcement. We are kind of planning on doing Hollywood films soon. We will make an official announcement in detail. So this is just a teaser of that. So वो आएगा, वो भी आएगा. Okay. So अब जैसे कि हाँ, हम दोनों का वो एक डिफरिंग ओपिनियन है यार. ये क्या है, रणबीर और आलिया का कुछ है क्या कनेक्शन? जिगरा में भी मेरा एक डिफरिंग ओपिनियन था, इधर भी तेरा एक डिफरिंग ओपिनियन है. एंड मेरे लिए वही है कि तू जैसे बोल रहा है कि देयर इज एन आर्क टू इट, मैं बोल रहा हूँ देयर इज एक आर्क नहीं है. मेरे हिसाब से ये है कि उसका जो कैरेक्टर है, ही इज ऑलवेज बिन लाइक दिस. थोड़ा सा ब्रीफली लेट्स टॉक अबाउट रश्मिका. यार मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ उससे, और उसकी हिंदी से मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली रश्मिका, आई अपोलोजाइज. डबिंग करा ले यार, प्लीज डबिंग करा ले, मत बोल हिंदी. आई नो यू कैन स्पीक इन हिंदी बट प्लीज. वो टिपिकल ठीक है, हियर इट वर्क्स बिकॉज शी इज प्लेइंग अ साउथ इंडियन, बट इन दैट कन्फ्रंटेशनल सीन मेरे को वो हिट ही नहीं किया. Rashmika also has an arc here where she gets more and more empowered throughout towards the end, where she makes a decision on her own कि भाई मुझे छोड़ के जाना है इस बंदे को. वो निब्बी से फेमिनिस्ट बन जाती है. और वो जिस तरीके से वो सीन होता है ना जिसमें बोलता है कि डोंट गो ओवर देयर, और वो एकदम से उसका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, पीछे से आके गले मिल लिया. ये क्लासिक मैनिपुलेशन. निब्बी फुल. टिपिकल निब्बी. She falls for all the most basic manipulation techniques. वो if you go back, वो जब इसकी engagement party में जाता है ना, वो वहाँ पे भी the first thing he does is he tries to get her nostalgic because school में he proposed and she said yes, right? So school का ही गाना बजाता है first. Doesn't even go and talk to her. वो पहले वो he gets her nostalgic, then वो आती है धीरे धीरे करके. It's like he's luring her and she gets lured in. And वो एकदम से आके बोलती है भैया कब आया अमेरिका से, एकदम टिपिकल साउथ इंडियन एक्सेंट. अरे बाप रे. पुष्पा जिस द मोस्ट आइकॉनिक रोल ऑफ हर्स, उसमें उसकी खुद की वॉइस थोड़ी यूज हो रही है हिंदी डबिंग में. And it's her best performance. हाँ. पुष्पा 2 by the way, not 1 में तो पल्लू ही गिर रहा है. यहाँ पे तो उतार ही दिया उसने. बट ठीक है, यहाँ पे it makes sense why she does that. Sandeep's intention here was that he has lost a lot of senses, but his sense of touch is still there. That is why, in my interpretation also, I did not bring it. This is also something that alpha males are taught not to do. Seek comfort through this hugging and cuddling and all that. But he does that second half mein. He actually seeks physical comfort. Vanga deliberately shows us the toxicity and the kind of situation which brings out this alpha male persona from his side. हम सिर्फ उन्हीं मोमेंट्स को देखते हैं. अगर तू सोचेगा, he leaves, जब उसका बाप बोल देता मेरे घर से निकल जा, and he marries गीतांजलि, and they share a marriage for like over 7 years. Yeah, he has a good settled life बोलता है ना वो बोलता है बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी मैरिज है उसकी. We never see any of that. The only instance which we hear about how it was when Geetanjali defends him in front of her parents. Yes. वो बोलती है उसको. तो मेरे हिसाब से मेरा इंटरप्रिटेशन एक और है कि ऑफ स्क्रीन वो सारी टेंडरनेस उसकी है. He was, I mean, जितना वो दूर है इस फैमिली से वो उतना अच्छा है. Actually. क्योंकि इसकी फैमिली इतनी टॉक्सिक है. Yeah. कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम वापस अगर आ गए किसी एक ऐसे एनवायरमेंट में, तो द एनवायरमेंट फोर्सेस यू टू बी दिस वे. वेरी फनी ऑब्जर्वेशन वेयर गीतांजलि कम्स आफ्टर द टाइम स्किप एंड हग्स हिम व्हाइल वेयरिंग अ लॉन्जरे. तुमको पता है ना, अगर मैं चाहूं तो मैं यूं ऐसे हो जाऊंगा, तो फिर वो एकदम बोलती है हो.
एंड बाद में जब वो साइकोलॉजिस्ट उससे पूछती है कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव सेक्स, तो फिर वो सीधा पूछता है आई मीन क्या, कब, इन अ डे, इन अ वीक, इन एन आवर, कितना। तो फिर वो ऐसे ओवर प्ले करता है ना कि अगर मैं अपना नंबर सुनाऊंगा ना तो तुमको शर्म आ जाएगी, अगले 5 साल के लिए कोई अगर मैं कुछ ना भी करूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, विच इज अ लाई बिकॉज वी सॉ कि दे हैवंट बीन हैविंग एनी इंटीमेट रिलेशंस इन दैट प्रीवियस सीन। उसमें उसका दिखता है कि ही ट्रीट्स स्ट्रेंज, विच इज वाई मैं वही बोल रहा था कि स्ट्रेंजर्स के सामने ही बिहेव्स अ वेरी डिफरेंट वे एंड ही कम्स अप एंड ब्रिंग्स अप दैट पर्सोना। व्हेन ही वाज अवे फ्रॉम हिज फादर हिज लाइफ वाज गुड, he could have just lived there, he उसको जरूरत ही नहीं थी वापस आने की। Let's talk about that Zoya factor, no pun intended। क्या stupidity था वो। आई फील लाइक बहुत स्ट्रेच था, थोड़ा सा दिखा दे तो भी चलता मेरे को तो। नहीं, मेरे हिसाब से वो पूरा ना that was just Vanga doing his deliberate attempt at pissing off I guess female critics or something कि उसको इस तरीके से दिखाओ कि जिस तरीके से वो ट्रीट करवा रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से he could have dealt with that particular character in many different ways। Yeah, because he does love her, right? Vanga actually admitted to it that he did love वो तो her. दिख रहा है। वो तभी तो जब फाइनली जब उसकी असलियत पता चल जाती है वो सीधा बोलता है ना उसको कि उसको जहां भी जाना छोड़ दो Yeah. और तमीज से पेश आओ। तो एंड ही ओनली डज दैट फॉर हिज फैमिली मेंबर्स व्हिच ही कंसिडर्स टू बी हिज फैमिली, सो ही कंसिडर्स जोया टू बी समथिंग एंड बेस्ड ऑन व्हाट हैज बीन हिंटेड एट द एंड मे बी ये भी एक बेटा इसने पैदा कर दिया है। जोया इज पोटेंशियली प्रेग्नेंट, राइट? One thing I noticed throughout the film is there are a lot of scenes in the film जहाँ पे it's a back and forth with मैंने कॉल नहीं किया, तूने भी कॉल नहीं किया। उसकी रश्मिका के पापा मम्मी आते हैं, रश्मिका बोलती है तुम भी नहीं कॉल किया, ठीक है, मैं कॉल हम लोग ने नहीं किया, तुम लोग ने भी नहीं किया। देन वो भी उसकी बहन आती है बोलने के लिए क्या पापा से प्रॉब्लम थी ना तेरे को, मेरे को तो कॉल करता। देन रश्मिका से तूने भी कोई कॉल नहीं किया, ठीक है। देन एंड में वो पापा को, पापा भाई यूनिवर्सिटी का नाम क्या था ये तो बताओ, ये सब मैं कहाँ रहता हूँ वर्जीनिया में, वो सब बताओ, आपने नहीं पता करा, मैंने भी नहीं किया। ओके, इट कीप्स हैपनिंग। अरे तू वो छोड़, जब वो पिंड जाता है, वो जो बड़े दादा Yes, के प्रेम चोपड़ा वो भी यही बोलते हैं कि अरे भाई तुमने भी तो कुछ नहीं किया, उनसे जाके मिलना, वो नहीं आया, तुम भी नहीं आए। मैंने कहा चल क्या रहा है 4-5 बार हो रहा है, मतलब डेलिबरेटली किया है, बट आई एम थिंकिंग वन ऑफ टू एक्सप्लेनेशंस। वन इज ही इज ट्राइंग टू शो दैट दिस अ ट्रांजैक्शनल आइडिया ऑफ लव की, ऑफ रिलेशनशिप्स की, यू हैव टू एक्चुअली गिव एंड टेक, और इट इज दैट अ लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स एक्सपेक्ट यू टू डू समथिंग बट दे वोंट डू इट। ये भी होता है। इट्स लाइक डिस्पाइट द ट्रांजैक्शनल नेचर, लव इज स्टिल लव, फैमिली इज स्टिल फैमिली। अगर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, फैमिली तो है। लेट्स टॉक अबाउट दैट वन पर्टिकुलर सीन जब वो बर्थडे पार्टी होता है और वो केक, वो जो केक वाला फ्रेम है, बड़ा सा केक है, उसके ऊपर ना एक क्राउन रखा हुआ है। या इट इज अ मेटाफर बेसिकली कि ये पूरा जो एम्पायर है ये एक केक है और इसको खाने के लिए सब लोग आए हुए हैं। और जब वो एंटर होता है पूरा आफ्टर दैट इंटायर कॉन्फ्रंटेशन विद द जीजा जैसे ही वो एंटर होता है, उसकी बहन वहां पे बैठी होती है और बहन उसको बोल रही है तू अभी तक सॉरी नहीं बोला ना, तो सॉरी बोल, क्या ऐसे थोड़ी बिहेव करते हैं, ऐसे थोड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले रणबीर का कैरेक्टर अंदर आता है, बोलता है कि क्या पता नहीं है क्या किसका बर्थडे है, तो जिसका नाम लिखा है बलबीर का, वो एक बिस्किट या चॉकलेट में लिखा होता है, इमीडिएटली उसको उठा के वो खाने लग जाता है। हाँ केक है तो पता है किसका बर्थडे है क्या, आई मीन आवर डैड डजंट नीड इंट्रोडक्शन है, और डैड डजंट नीड अ नेम टैग। उनको पता है कि इस घर में बाप ही सबसे ऊंचा है। I was thinking he wants the father to himself, doesn't want to share it with the company, so he removes the father from the company and eats it. yes, that's also another thing which I was coming at कि हाँ ये भी एक है कि उसको क्या है कि उसको बाप चाहिए, और दिस केक एंड क्राउन सिग्निफाइज द बिजनेस जो उसके जीजा को चाहिए। Yes. एक दोनों का स्टेजिंग हुआ पड़ा है, जिस तरीके से दोनों का कन्फ्रंटेशन है ना, दोनों ऐसे स्टेज हैं कि केक बीच में है, ये रणविजय इस तरफ खड़ा है और वो इस तरफ खड़ा है, दोनों के बीच में, एंड इट इज अ वाइड शॉट। सो उस वाइड शॉट में देखेगा दैट वन फ्रेम इज इनफ टू शो कि हाँ भाई ये थोड़ा सा इन दोनों के बीच में ना एक वॉर चल रहा है, एंड द वॉर इज टू डिफरेंट थिंग्स। इसका जायदाद वायदाद कुछ नहीं चाहिए रणविजय को, इसको इसका जायदाद ही चाहिए, इसको इसका बाप चाहिए, वो खा लिया उसने। That's the thing. वांगा इतने वाइड शॉट्स लेता नहीं है, ठीक है, तो जब होता है तो there is a reason he is doing that, right? Because a lot of his shots are just पहले एक बड़ा शॉट दिखा और फिर कट करके सीधा ही रैंडम कट आ जाता है, क्लोजअप हो जाता है। वो वांगा करता है। And another thing is it is happening in a glass
हाउस, प्राइवेट है बट ग्लास हाउस है, और बाहर बाहर सेलिब्रेशन चल रही है, अंदर इनका ये फैमिली ड्रामा चल रहा है, क्या है ये? तो दैट इज ऑल्सो शोइंग अ जक्स्टापोजिशन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स की ये हाई सोसाइटीज में क्या बकचोदी चल रही होती है. Vanga really loves top shots where the frame is like rotating. Okay, he does that when he is unaliving the brother-in-law. Okay, even I noticed that जब वो पूजा चल रही होती है ना, वो पूजा में भी there's a top shot and then it's a rotating frame. ठीक है. It is very similar. Okay, I'll tell you why that may be the case, because जो animal जो title card है उसके भी around there is this circles, rotating circles. So I think Vanga is sort of fascinated by that. वैसा ही शॉट एंड में भी तो आता है जब वो बॉबी देओल उसके ऊपर लेटा होता है, तब भी तो ऐसे घूम रहा होता है वो. Yeah. We've already talked about how intelligent Ranveer's character is. ठीक है. One of the notes I'd written was that it must be crazy to be inside Ranvijay's head. The thing where you talked about he is in the US and he is very happy, वो settled life जी रहा है. Okay, he doesn't come back, he doesn't want to come back, जो भी है. Ranvijay says कि मैं भूलता नहीं हूँ. I feel like वो US में और रहता ना, he would have, वो वापस उसको एक पॉइंट पे तो आना ही था. वो भूला नहीं है कुछ भी, वो कभी भी भूलता नहीं. इसलिए एंड में जो सीन है ना, when they role playing, he remembers all the details. छोटी से छोटी डिटेल्स को याद है. I mean, that can be attributed to trauma as well. Yeah. So इसलिए उसके लाइफ में जो भी खराब हुआ है ना, वो भूला नहीं है कुछ भी. Okay, this is why this is such an extreme person. वो कैरेक्टर बहुत यूनिक है. ऐसा कैरेक्टर तेरे को बहुत नहीं मिलेगा कहीं पे. I think Vanga is a troll. बहुत सारी इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें उसने सिर्फ ट्रोल करने के लिए रखी है. फर्स्ट एंटायर सीक्वेंस वो when he is old, ठीक है, वो भी पूरा ट्रोल ही है. वो अनाउंस ही कर देता है कि भाई मैं ट्रोल कर रहा हूँ. ठीक है. There is a scene where he is trying to troll when his character drinks cow urine. When he says Atmanirbhar, deliberately trying to troll a section of people. Yeah, I don't know whether it is a troll or whether he's actually glorifying it, because it feels like a glorification. It doesn't feel like trolling to me. It felt trolling when he went to the church. Yeah. कि क्या है, थकेला आदमी है, इसको मैंने बोला पूरा वॉमिट करने लग गया, और वो फादर भी बोलता है कि ये तो शैतान है यार करके. I saw Vanga talk about this. Vanga actually says that what the priest says and what the father of the church says, both of them are saying what is true. It's a fact. The priest says कि उसके he thinks वो जिंदा नहीं रहेगा, and heart actually stops. Yeah, it's a different heart that he has. Okay, and then he also says कि father says कि there is no redemption. There is no redemption. And there is no redemption that he gets. There was one more scene. कुछ तो यार कुछ चीज़ें हैं जो I was like ये सीन क्यों है, but then I figured out okay इसलिए ये सीन है. एक तो वो अंडरवेयर वाला सीन started to make sense. The patience वाला, when he says कि patience चाहिए, that is what he does with तृप्ति दिमरी. Okay, वो patience दिखाता है. I mean obviously वो भी है, but हाँ, that is what it's. Patience नहीं दिखाता, वो कुछ और ही दिखाता है उसको. हाँ. So remember when we talked about the parallels between first and second half, and बोलता है ना कि he tries to mince words with Geetanjali, और वो बीच में वो डॉक्टर को बोलता है कि सीधा बोलना कि okay, he does the same thing जब वो शादी करने जाता है, वो मंदिर में वो बोलता है पुजारी को कि मेन मंत्र पढ़िए ना, मेन मंत्र पढ़िए. ठीक है, he does the same thing वहाँ पे. So consistency बहुत crazy है यार वांगा की. यार तू वो देखना, वो I sent you that screenshot. He has a cigarette pack on when okay, जब वो बाइक पे होता है, he has a cigarette pack on. I was like क्या है? I was losing my mind. But actually that is a very typical South Indian touch. Oh, is it? जो साउथ इंडियन के जो मास मसाला हीरोज होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, सिगरेट पैकेट को ऐसे ही कहीं पे अटका के रखते हैं, शर्ट को ऐसे रैप करके रखा होता है, और सिगरेट्स को ऐसे कॉलर के बीच में रखते हैं. बट या इट मेक सेंस कि दैट कैरेक्टर वुड हैव केप्ट द सिगरेट पैक हियर. आई लव दैट. जब वो वर्कर्स को स्पीच देने गया ना, वो उनके ही कपड़ों में गया. यस. ओके, उसमें इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड है यार वो बंदे में. इतने प्रेशर के टाइम पे ही इज लाइक दिस इज व्हाट विल कनेक्ट विद देम. तो मीडिया लिटरेट भी है वो. Oh, there was one more scene I liked when he found out about the brother-in-law being the bad guy. He immediately passes him. There is a great cold scene and he goes to his sister and hugs her. और वो जब वो hug कर रहा होता है, then we intercut it with that we are coming back to flashback दिखाता है उसमें. तभी तो मैं कह रहा हूँ the first half इन सब structure की वजह से मेरे को first half बहुत अच्छा लगा. Interesting था. हाँ,
वो भी दिखाया जब गीतांजलि से मिलने उसके पापा मम्मी आते ना, फादर स्टार्ट्स रीडिंग पेपर, गीतांजलि इज अनॉयड विद दिस बिहेवियर ऑलरेडी कि चुपचाप बात अरे कर। इट इज अ टिपिकल इंडियन फादर का Yeah. वो कि हाउ टू अवॉइड अनकंफर्टेबल Yes. कॉन्वर्जेशन, जस्ट यू नो Start reading. वो भी एक तरीके का मैस्कुलिन ट्रेट है, वेरी प्रॉब्लमेटिक मैस्कुलिन ट्रेट कि जस्ट डू समथिंग टू अवॉइड अ डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन, इसलिए तुम ये कर रहे हो. इट इज सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट जब वो बात कर रहा होता है पापा से एंड यू फील दैट उसने कितना टाइम से ही हैज़ हैड दिस कॉन्वर्जेशन विथ हिमसेल्फ, वो अंदर रखा हुआ है उसने. ओके तो वो पापा को गिना रहा होता है कि मैं कहाँ रहता था यूएस में, वर्जीनिया में. द टीयर्स स्टार्ट कमिंग. पहला टीयर आता है ना, दैट इज छोड़ो पापा आप जीत जाओगे. दिस इज ऑल्सो रणबीर डूइंग लाइक ब्रिलियंट एक्टिंग वहाँ पे. वो बोलता भी है ना, उसका लाइन ऐसा होता है कि अगर मैं गिनवाने आ गया ना शिकायतें तो आपके पास तो टाइम ही नहीं है इतना, 6 महीने का ही टाइम है आपके पास. यार इट इज आई मीन द इंटरेक्शंस एंड द डायलॉग राइटिंग इज एक्चुअली रियली गुड. जिस तरीके से जो सिचुएशन के हिसाब से जो भी जिसने भी लिखी है ना, अगर वांगा ने डायलॉग्स लिखे हैं तो नहीं वांगा ने नहीं लिखा है. Somebody else has written the dialogue. I think the same person has also written dialogues for Kabir Singh. मेक सेंस सेम ही टीम है. बट मैं वही कह रहा हूँ कि दिस मूवी इज एक्चुअली यू नो है यार, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हियर इन दिस मूवी. बट अगेन क्लोज आई मीन वी आर कमिंग बैक टू द सेम स्टेटमेंट. संदीप वांगा रेड्डी को सब कुछ आता है फिल्म मेकिंग के बारे में, but the source of his ideas is a pile of crap. I'm not saying that his ideas are bad. I'm saying it comes from, जैसे कि जो manure होता है that is also crap. But manure is what grows agriculture में food वगैरह. So जो उसका है he draws from toxicity like a toxic heap. He has very toxic well जिसमें उसने ये सारे बहुत कॉन्फ्लिक्टेड और बहुत ही करप्टेड और बहुत सारे ऐसे ऐसे इसको थॉट्स आते हैं, वहां से ही ड्रॉस. I don't think he can draw something positive because he doesn't have much positive in his maybe well. So which is why he draws from it. But the thing is, he draws from it and he presents it in a very amazing package. Yeah. So मैं जो लोग भी देख रहे हैं ये मत सोचो कि मैं बोल रहा हूँ मूवी शिट है या वो बंदा शिट है. मैं कह रहा हूँ he comes from a very bad place. The ideas all come from a very bad place. As a movie बहुत अच्छी है in terms of टेक्निक, बट कंटेंट के हिसाब से नहीं. द मोरालिटी एंड ऑल ऑफ दैट नहीं. Yeah, understandable. मैंने तो प्रेजेंट कर दिया है my interpretation. So again, what it depends on you, what you want to take from it. It's ultimately it is the point of art. You just take what you want. Just don't follow anybody's advice from this film. No character here is okay giving you any life advice. वो they exist in that world. This is a very different world. यहाँ के real world analogies और ये सब अलग होता है. Which is why I was thinking जहाँ पे there is a scene ना जहाँ पे रणविजय का बेटा आके उसको बोलता है after the pad scene कि पापा हीरो हो. Okay, that scene felt like जब आवेशम में वो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि बीवी तो तेरे को भाई मानता है. Okay, you can see the same thing in his eyes जो फाफा के eyes में दिखा था मुझे. एंड फिर वो जाके क्या कहते हैं, वो वापस इमीडिएटली वो रश्मिका को हाथ पकड़ के बोलता है कि इसको बोल, और फिर वो बोलती है बट बोलते हैं नहीं कन्विक्शन के साथ बोल, बिकॉज ही डजंट फील शी मीन्स इट बट द चाइल्ड एक्चुअली मीन्स इट बिकॉज ही वॉज दैट सेम चाइल्ड. या एग्जैक्टली. और वो इसलिए तो वही सेम ट्यून भी बज रहा होता है. स्टार्टिंग वाले सीन में वो सेम ही ट्यून बज रहा होता है. एंड ऑल्सो वी कैन सी इन दैट इंस्टेंट दैट वेन एवर द सन विद द बॉय लिटिल बॉय इज अप्रोचिंग रणविजय, ही ऑलवेज पेज अटेंशन टू हिम, कॉन्ट्रास्टिंग विद बलबीर जिसने उसको भाव भी नहीं दिया था. So that goes to show that he has already learnt his lesson and he is treating his children much better, especially his son. Alright, I think we've covered everything. That all the notes मेरा तो हो गया है. So thank you guys for watching. Please like, share and subscribe.